Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher and I welcome you all. Today the topic of our talk will be articles. Before talking about article, let me tell you the article is just a part of determiner. And what is determiner? Determiners, the words which are used before nouns to define the nouns in some way. Or we can say a word, phrase or affix that occurs to express the reference of that noun. Okay. And we have almost six types of determiners. The first, as you know, that is our topic, article. Second, demonstratives. Third, quantifiers. Fourth, possessives. Fifth, ordinals. Sixth, distributives. Now, let us talk on our topic, article. As we all know, the article is a set of words or affixes used with the nouns to limit or give definiteness to the application. ये बात हमें पता है. This is called the all is called the article. And here I am telling you these are the determiners used before nouns to identify them. कहाँ करते हम use ये? Before noun के जिससे noun identify होता है. And here we have two types of articles. The first one is, you can see in this T diagram, the first one is indefinite article and the second is definite article. And in indefinite article, we have two subtypes, a, an, and definite having only one, that is the. And in the total, we have three articles, a, an, and the. Indefinite article is the type of the article that is used before general or common nouns. A and an are the articles which we are going to use before general or common nouns. And in that way, a is used with the general or common nouns that have an initial consonant sound. आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अ ए ई आई ओ यू के आगे एन लगता है और रेस्ट अल्फ़ाबेट्स के आगे अ लगता है. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना ए ई आई ओ यू, वो तो गलत होगा. वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके. अ इज यूज्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड and an is used with the general or common nouns that have an initial vowel sound. Let us go further. And now, definite article. Definite article is the article which is used with proper definite nouns or a specific noun. The is used with the name of the countries that have united in them. For example, USA. The is also used with common names. Particularize, for example, the red dress, the red chair, the red fort. अब आप यहाँ पे गलती समझना, सिर्फ द रेड के ही आगे आएगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसको हमने पर्टिकुलराइज किया, फॉर एग्जाम्पल द जम्मू एंड कश्मीर, द मुगल गार्डन. ओके. एंड we have other type also, that is zero article, या जिसको हम बोलते हैं omission of articles, जहाँ पे हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. that clearly means no article at all. अब हम indefinite article को पहले देखते हैं और an को देखते हैं हम ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. जब हमें an का, what is an? A small set of word. Okay. The sound determine our choice to choose a and an before the given noun.
ये सिर्फ साउंड ही डिटरमाइन करता है हमारा सिलेक्शन, हम अ लगाएं या एन लगाएं. A word beginning with a vowel sound, we generally used an. For example, an ant, an enemy, an ice cream, an orange, an umbrella, an hour, an honest man, an ear. यहाँ पे मैं आपको और भी एक ट्रिक बोलूँगी, लेकिन पहले हम अ करेंगे. A is used before a word beginning with a consonant sound. For example, a boy, a cat, a woman, a university, a European girl, a unicorn, a you, a useful article. We had noticed that these words, university, unicorn, European, etc., begins with a consonant sound of मतलब you. Okay? In the same manner, we say a 1 rupee note, a one-eyed man. समझ आया? यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी कहा, यू साउंड किया, यूनिवर्सिटी. तब हमने AEIO वोवल अल्फ़ाबेटिकल वे में नहीं देखा कि इसके आगे यू है तो हमें एन लगाना है. नहीं, हमने यहाँ पे साउंड देखा. इट्स नॉट अ वोवल साउंड, इट्स द कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, अब हम और भी यूजेस देखते हैं इसके यूजेस देखने से पहले मैं आपको पिछले यहाँ पे मैं वापस ले जाती हूँ आपको, और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बोलती हूँ. ट्रिक ये है कि जो भी वर्ड जिसका इनिशियल साउंड निकले किससे, ब से लेके य तक, आपको मैंने कॉन्सोनेंट्स करवाए हैं और आपकी जनरल बुक के फर्स्ट पेज पे भी कॉन्सोनेंट का वो लिस्ट दिया गया, कॉन्सोनेंट साउंड्स का. ब से लेके प, ब, ट, ड, क मैंने आपको ये कराए हुए. दीज आर द पॉजेसिव्स, दीज आर द स्टॉपर्स. फाइन. ब से लेके य तक जितने भी साउंड्स आते हैं उनके आगे अ आता है. जो भी ब से लेके य तक जितने भी साउंड्स आते हैं उनके आगे अ आता है, और सिर्फ अ और अ के आगे एन आता है. अ और अ के आगे एन आता है. अब हम देखते हैं इसका इंडेफिनिट आर्टिकल के और भी यूजेस. अ एंड एन इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, 12 इंच मेक्स अ फुट. हमें पता है न्यूमेरिकल सेंस में ये जो है 12 इंच ये एक फुट बनाता है, या हम बोलेंगे 12 ऑरेंज जो है वो 1 डजन बनाता है. हम बोलेंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल, आई बॉट डजन मैंगोज. हम नहीं बोलते हैं ना, सॉरी, आई बॉट 12 डजन ऑरेंजेस. हम नहीं बोलते हैं ना हमने 12 ऑरेंजेस ले लिए. हम क्या बोलते हैं, डजन. मतलब हमने 12 को डजन बना दिया, मतलब न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1. ओके, द नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ एवरी. He drove his car at 70 kilometers an hour. यहाँ पे हमने अब एवरी बोला. अब हमने उसने सिर्फ 1 किलोमीटर तो नहीं चला वो, तो उसने वो एक घंटा ही तो नहीं चला ना, उसने 70 किलोमीटर चलाया. वो चला होगा 2-3 किलोमीटर्स, 2-3 आवर्स, सॉरी 2-3 आवर्स में उसने 70 इंटू 4 आवर्स उसने चला. उसने यहाँ पे जनरल एवरी में उसने 70 किलोमीटर चला. एवरी आवर उसने गाड़ी 70 किलोमीटर चलाई, तो 2-3 आवर्स में उसने 70 इंटू 4 चलाया. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट में इन द सेंस ऑफ ए सर्टन, आई एम सर्टन अबाउट इट दैट एन ओल्ड मैन हैड 7 सन्स. ओके, जब इंसान सर्टन हो. या फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी अ मैन केम एंड नॉक्ड एट द डोर. यही वो आदमी था, इसलिए आया, इसने नॉक किया और चला गया. फाइन. और इन द जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल. वो काउ हिंदू की है, मुसलमान की है, ब्लैक है, वाइट है, हार्डली मैटर्स, बट इट इज अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल. कैटेगराइज किया हमने उसको कि यूजफुल एनिमल है. बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन.
बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन। यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अ का यूज़ करते हैं। शाइलॉक, ये एक आदमी का नाम है, हमने रिसेंटली ये पढ़ा होगा, आप सब ने पढ़ा होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनस इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर, यू नो, कनिंग कैरेक्टर, यू नो, क्रूअल कैरेक्टर। ही इज अ शाइलॉक इन हिज डीलिंग्स। शाइलॉक कौन था? मनी लैंडर था, फाइन। अब हमने एक आदमी को बोला ही इज अ शाइलॉक, ही इज लाइक ए शाइलॉक, ये प्रॉपर नाउन से मैंने इसको कॉमन में लाया, मैंने कॉमन पर्सनैलिटी में दे दिया, तो तब जाके मैंने इसको क्या लगा दिया? अ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, मैंने एक्सक्लेमेशन के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। या मैं बोलूंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओके, ये ब्यूटीफुली क्यों? व्हाट अ स्ट्रेंज साइट। ओके, इन द सेंस ऑफ सेम, इन द सेंस ऑफ सेम। अब हम सेंस ऑफ सेम में इसको कैसे इंडेफिनिट को यूज करते हैं, देखिए, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब यहाँ पे इस ये फ्रेज तो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो सेम ये जो परिंदे होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, ये तो आपने सुना होगा, यहाँ पे मैंने इसको इंडेफिनिट लगाया। या फॉर एग्जाम्पल, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, या और भी कुछ बहुत सारे ऐसे वेल नोन फ्रेजेस है, 100 पैसा मेक्स अ रुपी। सो यहाँ पे और भी है, इन सर्टन फ्रेजेस a sore throat, at a loss, on an average, etc. ऐसा आपने सुना होगा, इसके साथ भी हम an और a का यूज करते हैं। In the situation where superlative is used in the sense of very or very much, this is most fantastic scene, this is the most, यहाँ पे definite लगा, this is the most fantastic scene। ये अभी मैंने आपको डेफिनेट नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये यहाँ पे सिचुएशन में आ गया है। विद एब्रिवेशंस, कॉन्सोनेंट्स विद अ वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेटर्स इनिशियल लेटर तो कॉन्सोनेंट है, बट द साउंड गिव्स वोवल साउंड। ये कौन सा साउंड देता है? वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, एन एम ए, एम ए, मैंने आपको कहा था ना अ और ए का याद रखना, एन एम डी, एन MBBS, इस तरह के एब्रिवेशंस के साथ भी हम एन का यूज़ करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, हमें हरी में नहीं जाना है, यू जस्ट प्रैक्टिस ऑन इट, और इंशाल्लाह ताला लेट अस कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।